Okay. So here Vmax is one of the several important kinetic parameters that one has to look into. The amount of substrate needed to achieve a given rate of reaction is also important. This substrate concentration is also important parameter. And the relationship between these two parameters is given by Michaelis-Menten constant. This is that number. I mean, it is the substrate concentration required for an enzyme to reach 1/2 its maximum reaction rate. And every enzyme has its own characteristic Km. For a given substrate, suppose for hexokinase, there are two substrates, glucose and ATP. The Km values for ATP and glucose will be different. Okay. Km is the property of enzyme. Okay. Another useful constant is this, you have seen Km, capital K, small m. सुने हो स्टूडेंट्स नाम इसका माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट का पहले कभी? नो Km, ये माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट है. क्या है? Km is the substrate concentration at which maximum velocity is half. ओके. फिर दूसरा है कांस्टेंट के कैट. ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंजाइम के लिए. के कैट क्या कहता है? के कैट का नाम सुने हैं? नो सर. नो सर. नहीं सुना है? आज सुबह बताए थे. इट इज टर्न आउट नंबर. टर्न ओवर नंबर means it is the property of the enzyme, means how many numbers of the substrate molecules that enzyme is consuming, or how many numbers of the product molecules that enzyme is producing per second per enzyme molecule. Okay, that is turnover. It is denoted by kcat. In other words, it is the number of substrate molecules handled by one active site per second. So it is the unique property of an enzyme. This is also unique property. And if you take the ratio of these two, kcat by km, it gives you very useful information. And it is called as specificity constant. किसी भी एंजाइम के काइनेटिक्स को डिफाइन करें बताने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू काफी है. अगर आप बायोकेमिस्ट हो अच्छे, कोई नया एंजाइम किसी ने बोला देखो मैंने नया एंजाइम का खोज किया, डिस्कवर किया, पता लगाया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पूछेगा अच्छा बताओ स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट क्या है उस एंजाइम का. बस इस एक इंफॉर्मेशन से
एंजाइम काइनेटिक्स का पूरा उस एंजाइम के काइनेटिक्स का आइडिया लग जाएगा। ओके, सो बिकॉज दिस स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट defines the efficiency of, it tells you about the efficiency of an enzyme. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. One second. कहाँ पर थे? हाँ, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। तो ये स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है आपके एंजाइम के एफिनिटी को भी और कैटालिटिक एबिलिटी को भी, क्योंकि इसमें देखिए के कैट भी इंक्लूडेड है, यानी इसकी कैटालिटिक एबिलिटी क्या है, और केएम भी है, तो इसकी एफिनिटी क्या है। ओके, इससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कोई भी एंजाइम का केएम जो है जितना कम होगा केएम, वो एंजाइम उतना फास्ट कहलाएगा, उतना उसकी एफिनिटी ज्यादा कहलाएगी। क्योंकि केएम क्या है? इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एंजाइम रीचेज इट्स हाफ ऑफ द Vmax। तो केएम कम होने का मतलब हुआ कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ही एंजाइम का Vmax का हाफ अचीव हो गया। दैट मीन्स rate of the reaction is fast, affinity with the substrate is high। okay? Km ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा उसका वेलोसिटी को, Vmax हाफ ऑफ द वेलोसिटी को अचीव करने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो Km जितना कम एंजाइम उतना ज्यादा फास्ट समझा जाएगा, और K कैट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा एंजाइम इफिशिएंट माना जाएगा। और इन दोनों का रेशियो, चूंकि K कैट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, Km कम से कम होना चाहिए। K कैट जो है न्यूमरेटर और Km जो है मैक्लिस-मेंटेन कांस्टेंट आपका डिनोमिनेटर, इसका रेशियो विल give you a very useful information, and that is called a specific constant। Are you समझ में students? Yes, sir. And it is very useful when you compare two enzymes against each other. Suppose there are two enzymes which are catalyzing the same reaction. Which one will you prefer to use? The enzyme which is having high specific constant. That enzyme will be more useful for you, more efficient, more affinity it will give. Even अगर किसी एंजाइम के दो या दो से अधिक सबस्ट्रेट हैं, तो हर सबस्ट्रेट की वजह से, जो अगर दो है तो उसका स्पेसिफिक कांस्टेंट दूसरा होगा उस सबस्ट्रेट का, क्योंकि उस सबस्ट्रेट का के कैट अलग है, Km भी अलग होगा, और फिर उसका अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट भी होगा। तो एक एंजाइम अगर दो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि किस सबस्ट्रेट का जो है की वजह से, हर सबस्ट्रेट की वजह से एंजाइम का अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है। तो दैट मीन्स दैट सबस्ट्रेट इज
having more affinity with the enzyme. तो क्या करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में? जिसके साथ ज्यादा एफिनिटी है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। टू कीप द रिएक्शन इन द पेस, और जिसका रेट कांस्टेंट ये स्पेसिफिक कांस्टेंट कम है उसको कम मात्रा में भी रखोगे तो उस गति से वो रिएक्शन चलेगी। नहीं तो क्या होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में है और स्पेसिफिक कांस्टेंट अलग अलग है टू सबस्ट्रेट का, और दोनों सबस्ट्रेट इक्वल अमाउंट में दे दिए तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जिसका कम है रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट, वो सबस्ट्रेट बचा हुआ रह जाएगा। ओके, और जिस सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक कांस्टेंट हाई है दैट विल बी क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों सबस्ट्रेट आवश्यक है, रिएक्शन आगे रुक जाएगा। और क्या होगा, जब तक ये नंबर इसका फेवरेबल है तब तक चला, फिर उसके बाद ये इम्बैलेंस हो गया, रिएक्शन रुक जाएगा। और ये वन ऑफ द सबस्ट्रेट जिसका हाई है एफिनिटी, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एक्टिव साइट में बंधा रह जाएगा। उसको अगला वो बार बार बाइंड करेगा, डिसोसिएट करेगा, बाइंड करेगा, डिसोसिएट करेगा। दूसरा सबस्ट्रेट चूंकि उसका स्पेसिफिक कांस्टेंट कम है होने की वजह से, और इसका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर से ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके फिर एक्टिव साइट में दोनों बाइंड होगा, फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं पहुंचा, वो अभी पीछे चल रहा है, और दिस वन इज अवेलेबल, so it will bind and it will associate and dissociate with the enzyme, and other substrate will not. So as a result of which we will not find the product, reaction will be in the jeopardized state. It will be stopped. It will be halted. Any problem, students? No, sir. अब ये स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एंजाइम को एफिशिएंट माना जाएगा। ये तो आप समझ गए। अब देखिए कि थियोरेटिकली ये स्पेसिफिक कांस्टेंट जो है अपने मैक्सिमम लिमिट तक यू कैन इमेजिन दैट, ये हो सकते हैं, थियोरेटिकली यू कैन इमेजिन इट, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स डिफ्यूजन लिमिट। अगर ये अपने मैक्सिमम लिमिट के करीब है स्पेसिफिक कांस्टेंट किसी एक एंजाइम के लिए, then it will be called no, it will not be called. If it is at near its maximum, theoretical maximum permissible limit, specific constant, then it is called that it has reached its diffusion limit term. Diffusion limit is that limit where specific constant of an enzyme is near to its maximum. Okay, and this diffusion limit is around 10 to the power 8 to 10 to the power 9 molecules, 10 to the power 8 to 10 to the power 9 per mole per second
If an enzyme is having the specific constant in this range, then it will be called as diffusion limit. And it is very high. What it says, this value, that millions and billions of molecules are converting per second, are getting catalyzed per second, are turning up in, are changing into product per second, per mole. So this is very high. एक सेकेंड में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. तो कितना फास्ट होगा, एक्टिव साइट पर आ रहा है जा रहा है, कितना फास्ट होगा. ओके. और ऐसा है कि हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स इस तरह के डिफ्यूजन स्पेसिफिक कांस्टेंट को शो करते हैं डिफ्यूजन लिमिट के करीब. And at this point, when the enzyme is showing this type of behavior, every collision of the enzyme with the substrate will result in the catalysis. The enzyme away from the diffusion limit, every collision with its substrate will not going to result into the formation of enzyme substrate complex, because the enzyme substrate complex ensures the product formation. So every collision is not going to give you the result for product. But if any enzyme is showing this much, this was diffusion specific constant, it means that almost every collision is turning up into the result. Because of that, this much high value you are getting. Okay. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. And the enzyme with this property, enzyme which shows the diffusion limit, those enzymes are called catalytically perfect. We have such enzymes in our body which are capable of producing millions and billions of molecules of the product per second. And they are catalytically perfect, or they are termed as also kinetically perfect. They are kinetically perfect, these enzymes. Although these enzymes have not achieved their Vmax, but they are near to their Vmax. Maybe they are near around 99%, maybe they have achieved 99% of the Vmax. Okay, but 100% is impossible. जैसे लाइट का स्पीड को अचीव करना, it's impossible for a matter. Any particle which has mass cannot achieve the speed of light. Only massless particle can achieve the speed of light, such as photon. Because if any body, any matter particle having mass achieves the speed of light, then according to Einstein's theory of relativity, mass will become infinite. A particle's mass will become more than the mass of the universe. So that is not possible. So that's why speed of the light, to achieve the speed of light by matter, having matter, is not possible. चलो ये तो इधर हो गया. अब आप इसी तरह यहाँ भी Vmax, to achieve Vmax is not possible,
but these catalytically perfect, kinetically perfect enzymes, they are somewhere near to Vmax. The examples of such enzymes which are catalytically perfect, kinetically perfect in our body is, you have studied triose phosphate isomerase enzyme. Where is this enzyme is found? What it does? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। किस पाथवे का एंजाइम है? HMP। नो ट्रायोज, अच्छा क्या बोल रहे हो? संट वाला बोल रहे हो क्या? HMP संट? यस सर। हाँ, HMP संट का भी हो गया पार्ट, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है तो हो ही गया उसका भी पार्ट। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोलाइसिस में। इसीलिए इस एंजाइम जो है कैटालिटिकली परफेक्ट, कि इसकी आवश्यकता है कैटालिटिकली परफेक्ट होने की। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हाफ ऑफ द ग्लूकोज जो एंट्री हुआ एंट्री पॉइंट से, वहां से जो आगे चला वो तो ठीक, क्योंकि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, वहां से आगे का रास्ता उसका क्लियर है, वो बनते जा रहा है वन बाय वन। लेकिन ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो साइड में कलेक्ट हो रहा है वो भी इक्वल इन अमाउंट हो गया ना, जितना ग्लूकोज सेल के अंदर आया उसका हाफ यहाँ एक्यूमुलेट हो गया। सो दिस इज अ लार्ज मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मींस ट्रायोज फॉस्फेट गेटिंग accumulated. All those dihydroxyacetone phosphate are quickly converted into glyceraldehyde 3 phosphate because that enzyme is catalytically perfect. Okay. दूसरा एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये CO2 प्लस H2O से मिल करके HCO3 बनाया, ठीक। क्योंकि टिश्यूज में CO2 हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, क्योंकि वहां एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है टिश्यूज में, सोर्स ऑफ CO2 वहां से रिलीज हो रहा है तो टिश्यू में, तो CO2 कंसंट्रेशन हाई है तो टिश्यूज में इट फॉर्म्स दिस थिंग, फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन, ओके, बाय फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट टेक्स प्लेस इन द टिश्यूज, और वो फिर ब्लड सर्कुलेट करके लंग में आया। देयर in lung CO2 concentration is less because lung is in continuation with the external environment atmosphere directly. So atmosphere में CO2 का concentration is 0.3%. So the CO2 concentration is less in the lung. So there it dissociates in this concentration. It dissociates, bicarbonate dissociates into CO2 and H2O. And that's how CO2 is getting freed from this form in the lung, and you expel this CO2 out. So this enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी कैटालिटिकली परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे CO2 मॉलिक्यूल्स और H2O मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है बाइकार्बोनेट में, एंड बहुत सारे कार्बोनेट्स को इसको डिसोसिएट करना है CO2 और H2O में लंग के अंदर, भले रिएक्शन फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड, ये एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज्ड हो रहा है। तो अगर एंजाइम कैटालिटिकली परफेक्ट है तो ये कन्वर्जन और फिर रिकन्वर्जन दोनों का स्पीड जो है बहुत ही फास्ट होगा, ठीक। तो इसका है मिलियंस एंड बिलियंस मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड कन्वर्ट करने का एबिलिटी। इसीलिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड, विल बी एक्सचेंज बाय दिस मैकेनिज्म। तो ये कैटालिटिकली परफेक्ट हो गए। कार्बोनिक एसिटाइल, बहुत सारा एग्जांपल है आपका, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज भी है।
फिर आपका, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर है आपका कोलिन, इस न्यूरो मतलब ये एंजाइम जो है कैटालाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से आपका कोलिन ईस्टर्स बनते हैं, एंड दैट कोलिन ईस्टर्स फंक्शंस एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वहां भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि इन टू गिव आउट द सडन रेस्पॉन्स लार्ज अमाउंट ऑफ neurotransmitters are needed in a fraction of second to give a quick response. डिलेड रेस्पॉन्स हो जाएगा, नहीं तो आपका आप देखे अभी सांप, 5 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं भैया वो तो सांप था, तब तक सांप काट के चला गया। तो इन सब एंजाइम्स का कैटालिटिकली परफेक्ट होना जरूरी है। जैसे देखे तुरंत पीछे हो गए, बैक। कैटालेजेज भी है एंजाइम, ये भी है कैटालिटिकली परफेक्ट। कैटालेज क्या करता है, ये बताए थे आप उस शायद, कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करता है वाटर और ऑक्सीजन, क्योंकि सेल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, और ऑक्सीडेटिव डैमेज में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होते हैं। तो बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट हो रहे हैं, और उनको क्विकली न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। इसके लिए एंजाइम का जो रेट है बहुत फास्ट होना जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उसी तरह सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी है, ये भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सुपर ऑक्साइड जो O2 जो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरेट हो रहा है, and these oxygen reactive species are very harmful for the cell. It will damage the structures and other macromolecules. So to convert it into O2 and H2O, this enzyme is needed, superoxide dismutase. तो ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट और बहुत ज्यादा जो भी जनरेट हुआ उसका नंबर संख्या ज्यादा हो है तो भी सबको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि आपका सेल बचा रहे डैमेज होने से। अदरवाइज हम लोग का लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है अगर ये सब एंजाइम नहीं होते तो देखिए कि टर्नओवर ऑफ सच एंजाइम्स, ऑल दीज एंजाइम्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड जस्ट नाउ, कैन रीच सेवरल मिलियन रिएक्शंस पर सेकेंड। ओके, लेकिन इन एंजाइम्स के अलावा अदर एंजाइम्स भी हैं बॉडी में, दे आर far from perfectness, they are not catalytically perfect, and that is required. जो एंजाइम का रेट एडजस्ट हो गया है, that is required for the proper functioning of body. आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इस माइकलिस मेंटेन मॉडल को आप फार्मूला एक बार याद कर लीजिए इसका। And now this enzyme kinetics from your syllabus point of view will be over. नोट बना लोगे, जितना भी टर्म हम बताए हैं समझा तो हम दिए ही हैं, और इतने तो पढ़े लिखे हो कि समझ लेने के बाद उसको हम कॉपी में लिख सकें, नहीं तो मास्टर्स करने का फायदा क्या। जो चीज समझ जाते हो वो अपनी भाषा में अच्छे से स्पष्ट कॉपी में लिख सकते हो ना, इतनी काबिलियत तो होगी। Yes, sir. ठीक है ना, तो आप देखिए कुछ नहीं, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन लंबा जाएगा, कर सकता हूँ लेकिन फिर क्या फायदा, आधे से ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, और मुझे अपना कोई विद्वता का प्रदर्शन करना नहीं है। बस आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आप अच्छे से समझ जाइए, और उतना आप जब एग्जाम आए तो वहां पेपर पर उल्टी कर दो, वॉमिट कर दो बढ़िया से। तो अब देखिए ये आपको सी
this graph, this is Vmax, the limit of Vmax, substrate concentration is increasing. This is the graph, this is the line, parabolic line, showing the rate of reaction. So at any point, if you find out, if you want to find out the rate of the reaction, suppose if the substrate concentration is this, then what will be the rate of the reaction? You will extrapolate this line. Perpendicularly, you will draw a line, and wherever it is intersecting it, from there, you will again draw this line, and you will find the value of this point, how much it comes. So that will be the reaction rate. So like this, you will do. So hyperbolic relationship जो है ये है, और Michaelis-Menten kinetics में इसको formula derive किया गया. So this is that formula where it says the velocity of the enzyme kinetic reaction at any time point is equal to Vmax multiplied by initial substrate concentration divided by no, this is not the initial substrate concentration. Yeah. This is the free substrate concentration. Means that at the time point at which you want to calculate the V, at that time point, what is the available concentration of substrate? It is that substrate concentration. Because at this time point, you calculate this velocity, so the substrate concentration will be this, not the initial one. क्योंकि शुरू में initial में सबसे ज्यादा है 100% substrate, और यहाँ ये decrease हो रहा है. तो the substrate concentration at that point divided by this constant plus the substrate concentration. This is the velocity. This is the rate of enzyme catalyzed reaction, will be given by this equation. So this equation will be called as Michaelis-Menten equation. The same equation. And this is Michaelis-Menten constant. तो Km बराबर हो जाएगा आपका, इसको रीअरेंज करेंगे तो Km will be equal to substrate concentration multiplied by the ratio of Vmax and V subtracted by 1 तो अब Km समझ गए आप, Km जितना ज्यादा होगा that means enzyme is slow in action, less efficient, it is having less affinity with the substrate. If the Km is small, Km is less, then the rate is faster. The affinity is more, enzyme is efficient. ओके, तो एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला ग्राफ बनाओगे, ये दोनों इक्वेशन लिख दोगे, और अगर
एंजाइम मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अभी जो इसके पहले जो ग्राफ दिखाए थे यू विल ड्रॉ दैट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now I will come to the factors affecting the rate of enzyme reactions. This also is essential for you to know. इसको मिटा दे रहा हूं। Various factors affect the rate of enzyme catalyzed reactions, and you will find that all these factors should be kept constant if you want to get the optimal level of the enzyme. Optimum rate of optimum action of the enzyme. Then you need to have the optimum level of all these factors. What are those factors? Number one, आपका है these factors affect the enzyme kinetics. So these are rate of reaction जो है वो proportional होता है enzyme concentration के साथ. First one is enzyme concentration. किसका हम बता रहे हैं आपको? Points. Factors affecting the rate of enzymatic reactions. Enzyme concentration. इसके खुद का concentration कितना है? क्योंकि rate of reaction is proportional to the enzyme concentration. लेकिन एक शर्त है कि substrate concentration full होना चाहिए, पूरा saturated होना चाहिए। यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम मैक्सिमम कर दिए, एकदम अनलिमिटेड है, तब जो रेट है वो एंजाइम कंसंट्रेशन पर ही निर्भर करेगा। मींस इफ इन अंडर द कंडीशन ऑफ अनलिमिटेड सबस्ट्रेट सप्लाई, तब एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कितना है, ज्यादा एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा फास्ट गति से सबस्ट्रेट, ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। ओके, कोई दिक्कत समझने में? No, sir. If the substrate concentration is kept at the maximum unlimited supply, then the enzyme concentration is directly proportional to the rate of reaction. As the concentration of enzyme increases, the rate of reaction will also increase. So in this case, you will get the graph like this with a linear relationship. This is enzyme concentration versus rate of reaction. ठीक है, ये जीरो में नहीं मिलेगा यहाँ। The second factor is which determines the rate of the enzyme reaction. The second factor is substrate concentration.